میں خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 14 نومبر کو ضمنی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 68 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل ممبر وارڈ کی 10 نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے 167 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کراچی میں 14 نومبر کو ضمنی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 68 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل ممبر وارڈ کی 10 نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے 168 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں 14 نومبر کو ضمنی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ۔ کراچی کے 6 اضلاع میں چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل ممبر وارڈ کی 10 نشستوں پر 68 امیدوار مد مقابل۔ الیکشن کمیشن سندھ کے مطابق ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے کل 167 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔ ضلع ملیر UC 9 TMC بختیاور میں چیئرمین کی نشست کے لیے 5 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ UC 9 ملیر میں چیئرمین کے انتخاب کے لیے 11 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ UC 9 ملیر میں چیئرمین کے انتخابات کے لیے رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 15,729 ہے۔ ضلع کرنگی UC 7 TMC ماڈل کالونی میں چیئرمین کی نشست کے لیے 12 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ UC 7 کرنگی میں چیئرمین کے انتخابات کے لیے 21 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ UC 7 کرنگی میں چیئرمین کی نشست کے لیے رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 34,944 ہے۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں 14 نومبر کو ضمنی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 68 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ شارع فیصل، M A جناح روڈ اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب کالونی سے کینٹ اسٹیشن جانے والے مسافروں کو بھی ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نمرہ ریاست سے۔ اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر اس وقت ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ چھوٹی بڑی شاہراہیں جو ہے وہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہاں پر متاثر ہے۔ شارع فیصل پر نرسری سے ڈگ روڈ جانے والی شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ ہے، جبکہ راشد منداز روڈ کے دونوں ٹریک پر ٹریفک کی روانی متاثر دکھائی دے رہی ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر پرانی سبزی منڈی کے مقام پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے اور ترقیاتی کام کے باعث بھی ٹریفک جام جو ہے وہ معمول کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راشد منداز روڈ کے دونوں ٹریک پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ دیگر شاہراہوں کے حوالے سے بات کریں تو شہید ملت روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ کورنگی روڈ پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گودام چورنگی سے سنگر جانے والی شاہراہ پر بھی ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ کچھ شاہراہوں پر ٹریفک پولیس اہلکار موجود نظر آتے ہیں جو ہم وقت ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ کچھ شاہراہوں پر ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہیں ہوتے، جس سے شہریوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جس سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کرنگی میں قائم ناصر جنگ چوکی خستہ حالی کا شکار۔ چوکی انچارج عبداللہ شاہ کہتے ہیں کہ چوکی کی تزئین و آرائش کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبشر حسین سے۔ جی بالکل، اس ٹائم میں جو ہے وہ لانڈی چوکی پر موجود ہوں۔ میرا کیمرہ مین شیری اگر عقب میں دکھائے تو ایک جانب جو ہے وہ بالا افسران IG سندھ ایڈیشنل IG نے جو ہے وہ نظارت کھانے قائم کرنے سے سخت جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، لیکن یہ جو ناصر جم چوکی کہلاتی ہے اس کے عقب میں ایک کھلا میدان ہے، وہاں جو ہے وہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ مسروقہ موٹر سائیکلیں موجود ہیں۔ میں اس چوکی میں موجود ہوں، یہ ناصر جم چوکی کہلاتی ہے، یہ پولیس اہلکار میرے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیے کہ نظارت کیوں قائم ہے؟ جب بالا افسران نے منع کیا ہوا ہے، نظارت کیوں قائم کی؟ کیا ہو سر؟ نظارت کیوں قائم ہے تھانے میں؟ چوکی کے عقب میں نظارت کیوں قائم ہے کھلے میدان؟ میں آپ کو کیا بیان دوں؟ آپ بتا دینا کہ کیوں نظارت قائم؟ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ جی دیکھیں، جب ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نظارت کیوں قائم کی گئی ہے تو یہ جو ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح آپ جو میرا کیمرہ مین شیری ہے عقب میں دکھائے، بائیں جانب تو یہ جو ہے وہ کوئی خستہ حال چوکی اس ٹائم موجود ہے، دائیں جانب جو ہے وہ یہ کمرہ ہے، یہ پولیس اہلکار ہیں، صفدر جو ہے ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ سر بتائیے گا، جو ہے وہ چوکی کے باہر جو ہے وہ نظارت قائم کی گئی ہے، بالا افسران نے جو ہے وہ سختی سے احکامات جاری کیے تھے کہ نظارت جو ہے وہ قائم نہ ہو، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
नज़ारत में हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन नज़ारत में भी जगह फुल हुई पड़ी है। गुंजाइश ना होने की वजह से हमें खुद ही बुरा लग रहा है। स्क्रैप पड़ा हुआ है, गंदा लग रहा है, चौकी की खूबसूरती ख़राब हो रही है। चौकी को आप देख रहे हो, कलर मलर सारा मेंटेनेंस कितना, ऑफिस देखो हमारा कैसा है, तो हमें भी बुरा लग रहा है। लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे हमें कोई माकूल जगह वहाँ नज़ारत में मिलती है तो ये सारा स्क्रैप हम वहाँ जमा करा देंगे। अब मैं दाएं जानिब जो है ये कमरा है चौकी इंचार्ज का, इस चौकी इंचार्ज के दफ्तर में मैं दाखिल हो रहा हूँ। ये चौकी इंचार्ज हैं, उनके दफ्तर में मैं मौजूद हूँ। नासिर जम चौकी कहलाती है। कैसे हैं सर, खैरियत है? ये बताइएगा, ये जो थाने में नज़ारत है इस पर बाला अफसरान ने मना किया था कि नज़ारत कायम ना हो, इसका फ़र्द मुरतब की जा रही है, क्योंकि मुझे अभी 1 हफ़्ता हुआ लगे हुए, तो फ़र्द मुरतब की जा रही है। जो केसेस में होंगी तो उनको आगे से चेक करने के बाद और उसके बाद नज़ारत वालों को पहले भी बता रहे हैं कि लेटर लिखा गया, अभी दोबारा से लेटर लिखा जाएगा ताकि वो अपने पास मंगवाएं और इसको हम जमा करा दें। तो कोरंगी का जो थाने हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार, और बिलखसूस ये जो नासिर जम चौकी कहलाती है इसका कोई पुरसान हल नहीं। देखना ये है कब जो है वो तमाम तर कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। जी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान स्टील मिल्स के आला सतह के वफ्द की मुलाकात हुई। स्टील मिल्स इंतज़ामिया ने पानी का निज़ाम वाटर कॉरपोरेशन को देने की ख्वाहिश का इजहार किया। KWSC ने मुकम्मल निज़ाम देने की शर्त रखती स्टील मिल्स इंतज़ामिया से 11 अरब रुपए के वाजबात भी मांग लिए। टाउन और गुलशन हदीद में पानी बहरान, स्टील मिल्स इंतजामिया पानी का निज़ाम वाटर कॉरपोरेशन को देने को तैयार। KWSC ने मुकम्मल निज़ाम देने की शर्त रख दी। पाकिस्तान स्टील से 11 अरब के वाजिबात भी मांग लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान स्टील मिल्स के आला सतह के वफ्द की मुलाकात हुई। स्टील टाउन और गुलशन हदीद के तमाम फेज में पानी की फराहमी पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया ने अपने पानी का निज़ाम वाटर कॉरपोरेशन के हवाले करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी का मुकम्मल इंतजाम मांगा। 0 पॉइंट स्टील केनाल और फिल्टर प्लांट की हवालगी मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्हिका इलाकों में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वाटर कॉरपोरेशन ने 11 अरब रुपए के बकायाजात देने का भी मुतालबा किया। हुक्काम ने कहा कि अपने रिटायर्ड मुलाजिमीन को वाजिबात अदा करने हैं। स्टील मिल्स इंतजामिया ने बोर्ड से मंजूरी के लिए मोहलत मांग ली। KWSC हुक्काम ने कहा कि मुआहिदा होने तक स्टील टाउन इंतजामिया ही पानी की फराहमी की जिम्मेदार है। इलाके पाकिस्तान स्टील मिल्स के जुमरे में आते हैं। कराची गज्जो केनाल के जरिए पाकिस्तान स्टील मिल को बिला तातुल पानी फराहम कर रहे हैं। मुलाकात में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान भी मौजूद थे। रुकन सिंध असम्बली साजिद जोखियो, राजा रज्जाक बलोच, चेयरमैन बिन कासिम टाउन और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों की भी शिरकत। रोशनियों का शहर कराची अब बेकारियों की आमाज का बन गया। शहर कायद में शायद ही कोई चौराहा, सड़क या सिग्नल ऐसी हो जो इन गदागरों से पाक हो। तारिक रोड सिग्नल पर भी गदागरों की तादाद बढ़ गई। इन पेशावर बेकारियों ने कराची के बासियों की जिंदगी अजीरन कर दी। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। रोशनियों का शहर कराची भिखारियों की आमाजगाह बन गया है। यहाँ दिन ब दिन मांगने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी कोई रोकथाम नहीं नजर आ रही। गदागर माफिया खुले आम अपना राज बरकरार रखे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड के सिग्नल पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है हर सिग्नल के ऊपर एक एक गदागर खड़े हुए हैं, जो कि गाड़ियाँ जब सिग्नल पे रुकती हैं तो उनके पास जाके उनको भी तंग कर रहे हैं। हम शहर कायद के बासियों से ही जानते हैं कि वो इन गदागर से कितने परेशान आ चुके हैं। आइए। नहीं चाहिए, माफिया है बहुत बड़ा, सब गवर्नमेंट को पता, गवर्नमेंट खुद करवा रही है। पेशावर बेकारी के बारे में क्या बोलूँ, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ नशा के लिए आते जाते बस पैसे मांगते रहते हैं। अभी हम सिग्नल पर रुकते हैं, दिमाग खा जाते हैं कि पैसे दो, पैसे तो देने ही पड़ेगा। ये तो माफिया है, ये इनको नहीं दिया करें। लोग दे रहे हैं, इनको क्या करें हम। और ये भिखारी हर जगह पर खड़ी, हमारी कसूर है ना जब इन लोग को देते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे खुद। के बासियों को भी चाहिए कि इन पेशावर भिखारियों को भीख ना दी जाए, और जो हमारी हुकूमत या इंतजामिया है उनको भी चाहिए कि शहर कायद से इन गदागरों को निकाल दिया जाए, ताकि जो शहर का सुकून है वो भी बरकरार रखे। और जो शहरियों के इन गदागरों ने जिंदगी अजीरन बना के रखी हुई है, शहरी भी सुख का सांस लेके अपने घरों से बाहर निकल सकें। आखिरकार 3 साल बाद इंतजामिया को होश आ गया। वाटर पंप पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत बदलने लगी। पेडेस्ट्रियन ब्रिज का अधूरा मरम्मती काम शुरू कर दिया। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए।
वाटर पंप के पेडिस्टेरियन ब्रिज की हालत बदलने लगी। 3 साल बाद इंतजामिया को होश आया। वाटर पंप पर 3 साल से पेडिस्टेरियन ब्रिज के नाम पर मौजूद सीढ़ियों को उनका बकिया सामान मिल गया। पेडिस्टेरियन ब्रिज का आधा अधूरा काम दोबारा शुरू कर दिया गया। ब्रिज की तामीर मुकम्मल न होने के बायस सड़क पार करना शहरियों के लिए इम्तिहान बना हुआ था। शहरी कहते हैं इतने हादसात होने के बाद अब इंतजामिया काम कर रही है। यहाँ काफी इंसिडेंट भी हुए हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज लोग उतरता भी है टुवर्ड्स आयशा मंजिल से, ये वाटर पंप के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों को परेशानी है। लेकिन ये कि फाइनली हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि ये भी हो रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन 3 साल बाद हो रहा है, ये बड़ी लेजीनेस है इस चीज़ की। थैंक यू। जो हमारे दरान हैं उनको अब एटलीस्ट चलें, इस बहाने होश तो आया आवाम के लिए कि कुछ करें, देर है दुरुस्त है, होप फॉर द बेस्ट, आगे भी चलते रहें इसी तरह। 3 साल से लावारिस वाटर पंप पर मौजूद पेडिस्टेरियन ब्रिज इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर था, जो अब तामीर होने जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रोज़गार सहूलत प्रोग्राम के 7वें मरहले की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। 7वें मरहले में हज़ारों दरख्वास्तें मौसूल हुई। शहरियों को स्क्रूटनी के बाद 12 नवंबर को रोज़गार फराहम कर दिया जाएगा। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई में रोजगार के मौके की फराहमी, सियासी जमातें भी मैदान में आ गईं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का रोजगार सहूलत प्रोग्राम 7वें मरहले की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। प्रोग्राम के 7वें मरहले की रजिस्ट्रेशन पाया तकमील तक पहुंच गई। हजारों दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। रोजगार सहूलत प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर अब्दुल वहीद ने बताया कि 7वें मरहले में 200 से ज्यादा अफराद को 12 नवंबर को रोजगार फराहम करेंगे। इसमें यह है कि हमारे पास जो कल लास्ट डेट था तो बहुत रश था कल हमारे पास। हमारी ऑफिस टाइमिंग थी 6 बजे तक की, मगर हम 8 बजे तक बैठे रहें, लोगों के फार्म वसूल करते रहें। उसके बाद अब ये है कि इसकी स्क्रूटनी शुरू हो गई है और जो फार्म हमारे पास हैं 1000 से ऊपर फार्म हमारे पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दरख्वास्त जो हमारे पास आई हैं। और उसमें यह है कि हम इंशाल्लाह 12 तारीख को लोगों को उनका रोज़गार का जो सिलसिला है उनके हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। रोजगार सहूलत प्रोग्राम के तहत मजमुई तौर पर 700 अफराद को रोजगार फराहम किया जा चुका है। 12 नवंबर को मरकजी तकरीब में शहरियों को रोजगार इनके हवाले किया जाएगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ सैयद नुमान गोल, सिटी 21। कराची चैम्बर ने बिजली की कीमत सनती नमू के लिए बड़ी रुकावट करार दे दी। कराची चैम्बर नायब सदर फैसल खलील ने कहा कि हुकूमत इंडस्ट्री के लिए 10 साल की पॉलिसी दे। अब 1-2 रुपए बिजली सस्ती करने से कुछ नहीं होगा। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। बिजली की बढ़ती कीमतों पर कराची चैम्बर का भी सख्त रद्द अमल सामने आ गया। नायब सदर फैसल खलील ने बिजली की कीमत बुलंद सतह पर पहुँचने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बोले हुकूमत खुद देखे रीजनल ममालिक में बिजली का क्या रेट है। 1-2 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने से अब कुछ नहीं होगा। मुतालबा किया कि हुकूमत को इंडस्ट्री के लिए 10 साल की पॉलिसी देनी होगी। अगर गवर्नमेंट इसमें कोई 1 रुपए या 2 रुपए कम कर देती है या बढ़ा देती है 1 रुपए 2 रुपए, इससे चलेगा नहीं काम। आपको बिजली के एक मुनासिब कीमतें ऐसी करनी पड़ेंगी जो आपके पड़ोसी ममालिक हैं, यानी कि बांग्लादेश है, इंडिया है, और हमारे पड़ोसी ममालिक के बराबर आपको लाना पड़ेगा, ताकि एक्सपोर्टर जितने भी हैं वो जब अपना माल बनाएं तो उनका रेट ऐसा हो कि वो साथ वाले मुल्कों से मैच करे और वो तरीके से उसको एक्सपोर्ट कर सके। कराची चैम्बर नायब सदर ने कहा कि इंडस्ट्री को दीगर मसाइल का भी सामना है। कहा कि कराची के 7 सनती जोन में पानी नहीं मिलता, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गैस प्रेशर न होने के बराबर ही रहता है। जितने इंडस्ट्रियल जोन हैं, इसके अलावा आप जितने ये कमर्शियल इलाके हैं, दुकानदार हैं, आप ये देखें कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। तो ये सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्रियल एरिया में आपको बिजली मुनासिब कीमत पे देनी पड़ेगी, उनको पानी, गैस जो हमारे साथ वाले ममालिक हैं उनसे कंपेयर करें और उन रेटों पर आप ये लेकर आएँ ताकि एक तरीके से एक्सपोर्ट चल सके। कराची चैम्बर नायब सदर ने कहा कि कारोबार आसान की बातें सिर्फ ना की जाएं, हुकूमत अमली इकदाम करके सनती तरक्की के लिए हकीकी इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत ख़वातीन यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली खुसूसी शिरकत की। इन्होंने लड़कियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना मुआशरे की अहम ज़रूरत करार दिया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। रौनक इस्लाम गर्ल्स कॉलेज खारादर में विमेन यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। ख़वातीन के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और जिद्दोजहद पर रोशनी डाली गई। विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। मुकर्रिरीन ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया।
तकरीब की मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने खिताब में कहा कि हिरासगी का शिकार ख़वातीन 1094 पर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। अवेयरनेस कैंपेन करना चाह रहे हैं और परमिशन मिल गई है, उस प्रोग्राम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बच्चियों को पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं। सूबाई वज़ीर ने थैलीसीमिया टेस्ट करवाना ज़रूरी करार दिया। उसको मेंशन किया जाए और थैलीसीमिया का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर उसी निकाह नामे में एक कॉलम हम बना दें तो लोग अवेयर भी हो जाएंगे और पाबंद हो जाएंगे उसको करने के लिए। विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन और मुंतजिम ने बताया कि यूथ कन्वेंशन का मकसद ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। ये इवेंट जो इन्होंने यहाँ पर किया है, इसने कितनी बच्चियों को इंस्पायर किया है, हम लोगों को इंस्पायर किया है। इस ओवर की कोई कैद नहीं है, हमको हमारे राइट्स बताता है कोई। तलबा ने कहा कि निकाहनामा से मुतालिक मौज़ूआत बहुत मालूमाती था। एक बात मुझे जो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी वो ये थी कि हमारे निकाहनामा में हमारे जो हुकूक हैं उनको क्रॉस किया जाता है। कन्वेंशन में तलबा समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।